Welcome back to another video by Paji Classes. In this video, we will cover quantum mechanics as presented to you. So we will be covering very basic concepts of quantum mechanics. And in this video, at the last, I will also share you some important questions. बीच बीच में मैं हिंदी का भी यूज़ करूँगा so that you guys are very comfortable, and also English. So the person who are from south side are initially not comfortable in Hindi. So yeah, I will try to manage the language so that you guys can easily understand the concepts of quantum mechanics. I will try my best. Okay, with that, let's begin with the basic introduction of classic mechanics. Whenever you are studying any macro level properties like speed, mass, force, energy, etc. of a macro particle itself, then classical mechanics comes into the game. But when you come at the microscopic level or the micro level particles, then you cannot continue with classical mechanics to study these properties. So to study those, some new formulas were derived or introduced to this world, and these are the list of those scientists, some very important lists of the of such scientists who introduced these formulas like Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Pauli, Bohr, and etc. etc. And this new branch of physics thus was called as quantum mechanics, where quantum means very small. Now, with this, we should know that what was the need to introduce what was the need to introduce quantum mechanics instead of classical mechanics. So first of all, as mentioned, that classical mechanics failed to explain the phenomena at subatomic levels. Yeah, this is understood by all of us. But what phenomena are they talking about? So they are talking about black body radiations, photoelectric effect, and emission of X-rays or any type of rays by a body. So जब भी कोई बॉडी इन तीनों या इसके अलावा भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, जैसे कि पोलराइजेशन है, डिफ्रैक्शन है, एंड देन इंटरफेरेंस है, जब भी इन सर्टन फिनोमिनास को एक्सप्लेन करना है एंड इसे स्टडी करना है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के पास इसके रेलेवेंट में कोई भी आंसर्स नहीं है, या कह सकते हैं फॉर्मूलाज नहीं है जिनसे हम इन इफेक्ट्स या फिनोमिनास को पढ़ सकें. So this was the need for quantum mechanics, and thus quantum mechanics was built. After that, wave particle duality, it says or claims that the light possesses both particle and wave nature, but it depends that how we are dealing or how we are studying the particles or the wave of light. I mean to say कि हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट पर्टिकुलरली किसी इंस्टेंट पे वेव की तरह बिहेव कर रही है या पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है. चलो, हमने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट के पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेव का भी है और पार्टिकल का भी है. बट हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइट का एक्टिवेटेड है, कौन सा डीएक्टिवेटेड है? सो एज इट, इसका आंसर यही है कि दोनों ही नेचर्स लाइट पोजेस करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम कौन से फिनोमिना को स्टडी कर रहे हैं लाइट की हेल्प से. लाइक अगर हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तब वेव नेचर हम ऑब्वियसली यहाँ पर स्टडी या फिर गेम में लाते हैं. जस्ट अ सेकेंड गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. बट हाँ, सो वेवर भी कि जब भी हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन जैसे इफेक्ट्स को पढ़ेंगे, तब लाइट वेव नेचर की तरह हमें ट्रीट करनी है. एंड जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे इफेक्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, देन हमें लाइट को एज अ पार्टिकल एज्यूम करना है. नाउ व्हाई इज इट सो? बिकॉज इंटरफेरेंस क्या है? इट हैपन्स
बिकॉज इंटरफेरेंस कब होती है, जब दो वेव्स ओवरलैप या कंबाइन करती हैं। तो जब ये वेव्स के रिलेवेंट में स्टडी हो रही है, देन लाइट इज टू बी अज्यूम्ड एज अ वेव। एंड जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होती है, तो जब कोई सर्टेन चार्ज पार्टिकल किसी फोटो रिसेप्टिव मेटेलिक प्लेट या फिर फोटो रिसेप्टिव मटेरियल के ऊपर गिरता है, एंड उस फोटो रिसेप्टिव मटेरियल के सरफेस के पार्टिकल्स को चार्ज करके वो एक्साइट करता है, दस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ऑल ऑफ अस आर अवेयर अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस पूरे फिनोमिना में हम सिर्फ पार्टिकल्स की ही आपस में इंटरेक्शन को स्टडी करें, दस लाइट इज नीडेड टू बी बिहेविंग एज अ पार्टिकल इन दिस केस। सेम इज विद ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड सेम इज द केस विद डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। डिफ्रैक्शन में लाइट या फिर कह सकते हैं कोई भी बेंड होती है जब वो किसी सर्टेन डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से पास करता है। एंड पोलराइजेशन में हम ये देखते हैं कि नॉट लाइट, कि एक पर्टिकुलर वेव डिफरेंट डायरेक्शंस में ऑसिलेट या वाइब्रेट करती है। सो वेव नेचर अगेन वहाँ पर स्टडी किया जाता है। सो अगर हम लाइट के केस में पोलराइजेशन को स्टडी करें, वी विल कंसीडर इट एज अ वेव। होप सो द आइडिया इज क्लियर टू यू। After that, there is de Broglie concept of matter waves. So before that, you need to know about this particular equation. Lambda is equals to h by p, and where p is your momentum, h is Planck's constant, and lambda is your wavelength. So this wavelength formula was not directly proposed by de Broglie. अगर हिंदी में कहूँ तो डी ब्रॉगली ने ये फॉर्मूला डिराइव नहीं किया था, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्वेशन से। अभी हमें यहाँ पर एनर्जी मास इक्वेशन इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर दिखता है। जब हम यहाँ पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के फॉर्मूला यूज करें, जहाँ पर कोई भी बॉडी अगर रेडिएशन इमिट कर रही है, दैट रेडिएशन इफ इज ऑफ एनर्जी v हैविंग फ्रीक्वेंसी म्यू, देन दैट एनर्जी E विल बी इक्वल्स टू h म्यू। जब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम एक इक्वेशन डिराइव करते हैं वेवलेंथ की, दैट इज ऑल्सो लैम्डा इक्वल्स टू h बाई पी। सो यहाँ से ये डिराइव हुआ था, बट दिस इक्वेशन वाज जस्ट फॉर फोटोन। तो ये जो वेवलेंथ है, ये सिर्फ एक फोटोन की वेवलेंथ है। बट डी ब्रॉगली ने क्या किया, एक तरीके से उसने एक एजम्पशन किया कि अगर ये एक फोटोन के लिए है, एंड सिंस फोटोन कैन ऑल्सो बिहेव एज अ पार्टिकल, and particles are present in nature and nature loves symmetry, so why not, if particle is a matter, why not just particles, or more precisely matter particles will have a wavelength equal to that of a photon। यानी कि फोटोन की जितनी वेवलेंथ है उतनी ही मैटर पार्टिकल्स की क्यों नहीं हो। तो उसने एक एजम्पशन किया that these two wavelengths are equal, and guess what, further उसका ये assumption right true हुआ। मतलब जब इसे डिराइव किया गया, तो फर्दर प्रूव हुआ कि ये क्वेश्चन करेक्ट है। So that was all written in this context, that nature loves symmetry. If radiation has dual nature, then matter must also have similar wave particle duality। कि मतलब रेडिएशन के पास अगर ड्यूल नेचर है, तो मैटर के पास भी सिमिलर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी होनी चाहिए। मैटर भी वेव और पार्टिकल नेचर पोजेस करना चाहिए। The radii of Bohr's orbit are proportional to the square of integral numbers। हमने शायद अपने क्लास 12 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी किया होगा, तो बोर ऑर्बिट्स के रेडियस का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा वहाँ पर। तो दैट वाज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इंटीग्रल नंबर्स, एंड वहीं से फिर ये फॉर्मूला डिराइव हुआ था
लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम बी का पार्टिकल्स के लिए। यहाँ पर तो आइंस्टाइन ने और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हेल्प से हमें फोटोन के लिए वेवलेंथ मिल गया, लेकिन ये वाला वेवलेंथ कैसे प्रूव हुआ? दिस इज नॉट द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, बट इन फैक्ट this was proved by Bohr. So you can go through the internet, check the derivation of de Broglie's wavelength according to the Bohr orbit formula, whatever you can search. तो सिंपल क्या कहें कि इसके फॉर्मूला को, डी ब्रॉगली के फॉर्मूला को डिराइव इसने किया था, इसने जस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए, वो आर्ग्यूमेंट्स ट्रू प्रूफ हुए. So this was all in this context. now further डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फिर फर्दर और भी टर्म्स के रिलेवेंट में मतलब कह सकते हैं डिड्यूस किया गया या फिर फर्दर इंट्रोड्यूस किया, ऐसे भी कह सकते हैं. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डिनोट किया गया. सिंस इट इज लैम्डा equals to h by p, where p is momentum is mass into velocity for a matter, and the kinetic energy will be half mv square. So after relating all these formulas, we got up to this particular equation number third, that lambda is equals to h upon under root of 2me, where m is the rest mass of the particle. So here it is written as m equals to rest mass, that m equals to m naught, where m naught is the rest mass of particle. Now what is that? Why not we can assume just as a mass? So this mass is not just as this mass is not related to the weight of body, it is related to the weight and velocity of the body. So its entire equation is m equals to m naught divided by under root of 1 minus v by c square. I hope this formula is correct. I am not pretty sure about the formula, but in this similar manner the formula is present. So here further the relativistic correction is ignored, thus the rest mass is considered here. So this equation lambda equals to h upon under root of 2 me is further reduced to lambda equals to h upon under root of 2 m naught ev, where ev is the potential difference provided to where ev is the work done on an electron to accelerate it to a velocity of v. भाई सिंपल सी बात है, अगर उसको वेलोसिटी मिला है, काइनेटिक एनर्जी मिला है, तो किसी ना किसी पोटेंशियल एनर्जी के करके मिला होगा. एंड इफ देयर इज पोटेंशियल एनर्जी, देन वर्क डन शुड आल्सो बी प्रेजेंट और माइट बी प्रेजेंट. बट इन दिस केस वर्क डन इज प्रेजेंट बिकॉज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल v वोल्ट्स का जब अप्लाई किया तो वर्क डन इलेक्ट्रॉन पे ev के बराबर होता है. सो दिस एनर्जी इज इक्वल टू ev, since the entire work is converted into kinetic energy of the electron. We are assuming this. Where E is in columns whose value is 1.6 into 10 to power minus 19 coulombs. M is the mass in kg, V is the volts, and small v is the velocity in meter per second. So after substituting these values, and m naught, the rest mass of an electron, is already calculated by certain experiments whose value is 9.1 into 10 to power minus 31 kg. After substituting these values and the value of Planck constant, which is 6.63 or 6.625 into 10 to power minus 34 joule second, we got up to this formula of 12.27 divided by root of capital V into, not into, angstroms. So this is the final reduced form of a wavelength in terms of potential difference applied to a electron. So this formula is only for electron. When it is
said for a proton you need to consider the mass of proton. So instead of m naught equals to 9.1 into 10 to power minus 31 kg, you will be using the mass of proton. So you need to be carefully applying these formulas. हम क्या करते हैं, वेवलेंथ सुनते ही सबसे पहले h इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी की तरफ भागते हैं, और अगर काइनेटिक एनर्जी की बात कर दी तो हम इस फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, अगर पोटेंशियल की बात कर दी तो इस फॉर्मूला पे जंप करते हैं. सो यहाँ पर इसके तीन तीन फॉर्मूलाज के बीच में जब भी हम जंप करते हैं तो समहाउ हम क्वेश्चन को गलत पढ़ने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं साथ में. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल बाय रीडिंग क्वेश्चन कि हमें किस पार्टिकल की वेवलेंथ इवेल्युएट करने को बोला है. तो सबसे पहले यही क्वेश्चन करो अगर वेवलेंथ के रिलेवेंट आपको कोई डाटा इवेल्युएट करना है कि मुझे किसकी वेवलेंथ निकालनी है. इफ इट इज अ पार्टिकल, so what type of particle is it, and if it is a wave, what type of wave is it, or what frequency does that wave have. After that, here are the properties of matter waves. Now according to these relations, this relation in equation 1, 2 and 3 and further equation 4, we can deduce that for a matter wave, if a particle is moving with high speed, its wavelength will be low, and vice versa is also true, where the velocity is low and wavelength is high. And same is for the mass, that if a heavy particle is present, its wavelength will be less, and if a lighter particle is present, it is in motion whatever with a constant velocity, then its wavelength will be less as compared to the first case, or greater than, according to the proportionality relation between these two. So this is what is said in the first two statements of this slide. Lighter the particle, greater would be the wavelength of the waves associated with it. यानी जितना हल्का पार्टिकल होगा उससे रेलेवेंट वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. पार्टिकल हल्का होगा तो ये m का वैल्यू कम हो जाएगा, यहाँ पर m का वैल्यू विल बी लेस, एंड जब m का वैल्यू लेस होगा ऑटोमेटिकली लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू. Smaller the velocity of particle, greater would be the wavelength of the matter waves. Again वही velocity वाला relation. अब mass को छोड़ के velocity देख लो. अगर velocity slow है या कम है तो उसके relevant में जो भी wavelength होंगी वो ज़्यादा होंगी as compared to जब ज़्यादा velocity है. Now here is a case in point third that अगर velocity infinite है so wavelength will be zero, and if velocity is zero then wavelength becomes infinite. Now if a particle is moving, अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर एलिमेंट में आपको अभी एक वीडियो भी दिखाता हूँ एक सर्टन मूवी के अंदर जिसे दिखाया गया है. इसका सिग्निफिकेंस या इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं आप कि अगर कोई पार्टिकल इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका वेवलेंथ जीरो होगा. अगर वेवलेंथ जीरो है तो पार्टिकल हमें दिखेगा ही नहीं. क्वांटम मैकेनिक्स कुछ इस तरीके से हमें समझाती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट स्पीड से चल रहा है हमें वो दिखेगा ही नहीं. दिखेगा क्यों नहीं? क्योंकि हम उसे लोकेट ही नहीं कर पाएंगे. वो चल रहा है, वो अपनी हाई इनफाइनाइट स्पीड से चल रहा है, पर हम उसे लोकेट नहीं कर पाएंगे. लोकेट क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वेवलेंथ ही जीरो है. एंड क्वांटम मैकेनिक्स में हम वेव्स के ही हेल्प से पार्टिकल्स को लोकेट करते हैं. आई विल टेल यू कि क्यों करते हैं. सो हियर इज द वीडियो. मैं यहाँ पर इसके ऑडियो को म्यूट ही किया हूँ. just look at the video only. So there is a very important question asked by the character of this movie. This movie name is Lucy. Time is Unity, etc., etc. The name of movie. You can find it out now. You can find it out on web if you want to see this movie.
It's very interesting movie. So the question he asked to this professor is, so what proof do we have of the existence of that particular car which was moving at infinitely high speed? Since the car is having infinitely high speed, I'm really sorry for the disturbance. कुछ तो हो गया था, I don't know. Yeah, so we are back to the slide. तो हमने देखा कि किस तरीके से लूसी ने क्वेश्चन रेज किया कि हमारे पास क्या प्रूफ है उसके एग्जिस्टेंस का. सो प्रूफ यहाँ पर है कि अगर एक पार्टिकल का वेलोसिटी इनफाइनाइट है, in that case the particle was considered with the case of car which was moving with infinite speed. So उसका वेवलेंथ जीरो होगा, एंड वेवलेंथ जीरो होगा तो उसे हम लोकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका वेवलेंथ जीरो है, तो हम लोकेट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इट्स हैविंग जीरो वेवलेंथ. तो खुद ही अज्यूम करो कि अगर एक सर्टन वेव है, फॉर एग्जांपल इस स्लाइड में भी किए हैं कि अगर ये वेव है एंड इसका वेवलेंथ जीरो, तो यहाँ पर तुम नहीं कर पाते हो बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स में वेव को स्टडी करके लोकेट किया जाता है. हम ये देखते हैं जस्ट अ सेकंड, थोड़ा इंटरनेट इशू है इसलिए वीडियो लैग कर रहा है जो मेरा वीडियो है. तो यहाँ पर कुछ क्रेस्ट और ट्रब्स का जो है, या कह सकते हैं वेव जो भी है डिस्टेंसेस हैं इनके बीच में, या एम्पलीट्यूड कह सकते हो, वो डिफरेंट है. जैसे देख रहे हो इसकी सेंटर वाली जो पिच है, सेंटर वाली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड और साइड वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड अलग अलग है. तो यहाँ पर क्या है कि सेंटर वाली पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ या दो से ज़्यादा वेव्स का, एंड जो बाकी वाली है उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा. ड्यू टू दिस रीजन इसका एम्पलीट्यूड कम है एंड सेंटर वाली का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है. नाउ सेंटर वाली ये एक इंटरप्रेट करती है कि यहाँ पर पार्टिकल के होने की probability ज़्यादा है as compared to the other these crests of the wave. Similar is the case with B and C, जहाँ पर अगर ज़्यादा बार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हमें ज़्यादा एम्पलीट्यूड की क्रेस्ट मल्टीपल टाइम्स देखेंगे. सो इस इमेजेस का यही सिग्निफिकेंस है कि हम एक वेव इक्वेशन होती है, ऑल्सो शायद वो भी मेंशन किया है यहाँ पर. या सो इस इक्वेशन थर्ड को देखो, ये एक वेव इक्वेशन है जहाँ पर ये साई नॉट इसका एम्पलीट्यूड बताता है. आई विल बी टेलिंग यू इट फर्दर इन दिस वीडियो ओनली. सो इस इक्वेशन की हेल्प से हम वो ग्राफ्स प्लॉट करते हैं, फर्दर ये फाइंड करते हैं कि पार्टिकल किसी सर्टेन रीजन में है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बिकॉज दिस इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन इटसेल्फ. या सो where were we? Yeah, so we were here. Hope so this particular point is clear to you. You can just simply remember this point that velocity infinite है, wavelength zero हो गया, and vice versa. Velocity zero तो wavelength infinite. So मैंने जो इतना अभी बोला है होप सो दिमाग में घुसा हो, बट नहीं घुसा है तो सिर्फ बस इसको डायरेक्टली रीड करके याद कर लो. बाकी थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं कोशिश कर रहा था कि आपके साथ कनेक्ट करके आपको वो समझा सकूं. जैसे समझ में आ गया इट्स वेरी गुड, जिन्हें नहीं आया देन ऑल्सो इट्स गुड. हाँ, द फोर्थ पॉइंट सेज कि मैटर वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्यों भाई? अब जो वेव्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी तो सर्टेन वेव्स हैं, वो मैटर के ही मोशन से प्रोड्यूस होती हैं या मूविंग पार्टिकल से ही प्रोड्यूस होती हैं, तो सेम क्यों नहीं, अलग अलग क्यों है? उसका कारण ये है कि मैटर वेव्स पार्टिकल के मोशन से प्रोड्यूस होती है, इट्स एक्सेप्टेड, बट वो पार्टिकल चार्ज है अनचार्ज है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वो पार्टिकल चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो नहीं प्रोड्यूस होंगे.
Now the fifth point says the velocity of matter waves depends on velocity of the particle generating them and it is not constant. Velocity उस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है जो उन्हें जनरेट कर रहा है. And then so the point 6 says कि matter wave travels faster than light because the particle velocity v cannot exceed the velocity of light. So the velocity of matter wave is greater than c. अब हमने बहुत बार सुना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में ऐसा नहीं है जो लाइट से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकें. लेकिन फिर ये 6 पॉइंट जो कह रहा है ये तो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है कि मैटर वेव्स लाइट से ज़्यादा फास्टर ट्रेवल करती हैं. अब इसका क्या रीज़न है? रीज़न यहाँ पर ये है कि इसमें ये जो रिलेशन हमें प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर मैटर वेव और लाइट की स्पीड के बीच का रिलेशन. सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस अगेन. थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा था इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा. So mic is working, I hope so. So we were on this point 6 which says कि मैटर वेव लाइट से ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करती हैं. बट हाउ इज दिस पॉसिबल इफ वी हैव हर्ड दिस स्टेटमेंट कि कोई भी चीज़ लाइट से तेज़ नहीं चल सकती, मैटर वेव्स क्यों चल पा रही हैं? सो दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. यहाँ पर सभी टर्म्स कोई ना कोई वेलोसिटी है. c यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी है, v यहाँ पर तुम्हारी मैटर वेव की वेलोसिटी है एंड म्यू यहाँ पर फेज वेलोसिटी है. अब ये फॉर्मूला यहाँ पर आया कैसे? बट इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जो v है वो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता लाइट का वेलोसिटी. तो ये जो 10 फेज वेलोसिटी है c से ग्रेटर देन. अब इसका एक डेरिवेशन का पिक्चर मेरे पास है जो आपको होप सो भी अपनी स्क्रीन पर विजिबल हो. या तो यहाँ पर अच्छे से आप वीडियो पॉज करके हर एक टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए कि कौन सी चीज़ क्या है एंड कैसे डिराइव है. फर्दर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वी गॉट टू नो कि मैटर वेव्स ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती हैं एज कम्पेयर टू योर light. So after that, the seventh point says a wave is spread out in space and cannot be localized at a point. So the wave nature of matter introduces a certain uncertainty in the position of particle. अब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस पीडीएफ में इटसेल्फ एक्सप्लेन किया गया बाय हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ऐसा बोला गया कि किसी भी पार्टिकल का हम जो वेलोसिटी है एज वेल एज उसका पोजीशन एक साथ एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते. तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का कोशिश कीजिए. यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है भी पढ़ लेना एक बार पॉज करके वीडियो को. इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एक्यूरेटली एंड साइमल्टेनियसली द वैल्यूज ऑफ बोथ मेंबर्स ऑफ पेयर ऑफ फिजिकल वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ एन एटॉमिक सिस्टम. यहाँ पर जो फिजिकल वेरिएबल्स हैं वो पोजिशन और मोमेंटम है, एनर्जी और टाइम है. एंड ऐसे ही करते करते ये पेयर्स को हम कॉनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल्स भी बोलते हैं. ऐसे ही करते करते मल्टीपल फिजिकल वेरिएबल्स हैं जो किसी पार्टिकल के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं एटॉमिक लेवल पर. अब ऐसे पर्टिकुलर पेयर्स ऑफ वेरिएबल्स को एक साथ साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी से डिफाइन करना इज नॉट अ पॉसिबल टास्क अकॉर्डिंग टू हेंसबर्ग. सिमिलरली ये जो ग्राफ्स हैं ये यही चीज़ इंडिकेट करते हैं कि अगर यहाँ पर पार्टिकल का मोमेंटा 100% एक्यूरेसी से लोकेट कर लिया गया स्पेस में, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लोकेट इस पोजिशन. सो यहाँ पर यू नीड टू अंडरस्टैंड ये ग्राफ्स समझा क्या रहे हैं. तो इन ग्राफ्स के अकॉर्डिंगली जैसे कि मैंने पहले समझाया था कि अगर दो वेव्स इंटरफेस कर रही हैं स्पेस में तो हम लोग क्या करते हैं स्पेस में किसी भी पार्टिकल को लोकेट करने के लिए उनके उसके इंटरफेरेंस स्टडी करते हैं. जहाँ पर इंटरफेस करने के बाद एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है पार्टिकल को फाइंड करने का. सिमिलरली ये ग्राफ्स भी वही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं
अगर पार्टिकल कंस्ट्रक्टिवली ओवरलैप हुए हैं तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, फर्दर वहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हुए हैं तो वहाँ एम्पलीट्यूड कम होगा, दस प्रोबेबिलिटी कम होगी पार्टिकल को फाइंड करने की। तो ABC तीनों ग्राफ यही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस। अब थोड़ा फास्ट पेस पे पढ़ते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, मैंने ज़्यादा ही डिटेल में समझा दिया आपको। आप चाहें तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बट यहाँ से तो मैं थोड़ा फास्ट ही पढ़ाऊँगा, यहाँ से नॉर्मल स्पीड से देखना। फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एसोसिएटेड विद मैटर वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मेजरमेंट डेल्टा इज इक्वल टू द वेवलेंथ लैम्डा। यहाँ पर फर्दर एक इक्वेशन बनती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच कट बाय टू, वेयर एच कट इज एच अपॉन 2 पाई, h is Planck's constant itself, and delta p represents the uncertainty in momentum, delta x represents the uncertainty in position. So उसके अकॉर्डिंगली ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h कट बाय 2 होगा। ये सर्टन फिजिकल वेरिएबल्स का प्रोडक्ट इनसे ज़्यादा होगा। एंड सिंस ये अनसर्टेनिटी रिप्रेजेंट करते हैं and it is greater than equals to h by 2, so it means to say कुछ ना कुछ एरर हमेशा रहेगा। अगर मैं x को डेल्टा पी में एंड अगर डेल्टा पी फाइंड करता हूँ तो डेल्टा एक्स में। इसे आप इस एक्सपेरिमेंट से भी फर्दर, हाँ, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के काम करने का यहाँ पर पूरा एक चार्ट देख पा रहे हैं, जिसमें एक इंसिडेंट फोटोन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर कह सकते हैं कोलाइड करता है, या फर्दर उससे कह सकते हैं इंटरफेयर करता है। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट फोटोन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरफेयर करेगा या कोलाइड करेगा इसे, तो सर्टन इसके मोमेंटम में कुछ या एनर्जी में कुछ चेंजेस करेगा। एंड फर्दर ये इलेक्ट्रॉन जब ये डी एक्साइट होगा तो कुछ फोटोन ये एमिट करेगा सर्टन एनर्जी का, जो फोटोन व्यूअर इस आईपीस से या कह सकते हैं सर्टन डिवाइस की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकता है। तो यहाँ पर होता है क्या इसका फिनोमेना कि एक इंसिडेंट फोटोन हमें यहाँ पर देना पड़ेगा एंड फर्दर एक रिफ्लेक्टेड फोटोन यहाँ पर हमें रिसीव होगा, जो हम देखेंगे, एंड उससे हम इस पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन कर पाते हैं। बट आप देखिए कि यहाँ पर इसकी जो मोमेंटम है वो तो चेंज हो गई ना। जो ओरिजिनल मोमेंटम था इलेक्ट्रॉन का वो फाइनल मोमेंटम से अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने एक इंसिडेंट फोटोन दिया, तो एनर्जी में चेंज, मोमेंटम में चेंज। तो इसलिए जब हमने उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिया तो मोमेंटम को 100% एक्यूरेसी से डिफाइन या डिटरमाइन या फाइंड नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू द हंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये एक्सपेरिमेंटली भी प्रूवन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। So this was the condition, delta x delta p greater than equals to h by 4 pi. यहाँ h upon 2 pi को h कर ली। Now here is the concept of wave functions, that what are waves and all that stuff, types of waves. You can go through it. Yeah. So in wave function, here is a simple, simple. Sorry, मैंने मिस स्पेल कर दिया। Here is a symbol जिसे हम psi कहते हैं, इट्स स्पेलिंग इज PSI। सो क्वांटम मैकेनिक्स में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये किसी पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी का मेजर है, एंड अगर मैं इस साई का स्क्वायर करता हूँ तो जो वेव फंक्शन मुझे मिलेगा उसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस ऑफ साई स्क्वायर, या साई मॉडुलस का स्क्वायर से कह सकते हैं, विच इज साई स्टार साई। तो यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन है। फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया यहाँ पर वेव फंक्शन का। तो psi is the amplitude of matter wave at any point in space. The particle density at that point may be taken as proportional to modulus of psi square, psi density. Particle density. A large value of probability density means strong possibility of the presence of body and vice versa. यानी कि जहाँ पर मॉड साई स्क्वायर का वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल के मिलने की, एंड एक्सेट्रा, एंड वाइस वर्सा, कि अगर कम होगी तो कम प्रोबेबिलिटी होगा। नाउ
अगर ये साई स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है एंड अगर मैं ये चीज़ जानता हूँ कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा ही, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम है, अगर मैं इसे इनटू वॉल्यूम कर दूं तो यूनिवर्स का डेंसिटी का समेशन 1 होना ही चाहिए, क्योंकि दैट रिप्रेजेंट्स कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पार्टिकल होगा, कहीं ना कहीं पार्टिकल होगा, सो इट्स पीक डेंसिटी विल बी 100% और यू कैन से 1। भाई यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पार्टिकल होगा तो उसका फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी 1 होगा, सो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का यूज करके उसके होने की प्रोबेबिलिटी को इक्वल टू 1 कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड यहाँ पर ये वॉल्यूम ऑपरेटर है dx dy dz, इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्टली d ऑफ v, जहाँ पर v इज एलिमेंट, जहाँ v इज द वॉल्यूम एंड dv इज द एलिमेंटल वॉल्यूम। एंड यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन का यूज़ किया है, आप इसे फर्दर अपने सेकेंड सेमेस्टर के अलॉन्ग या फर्स्ट ईयर में और भी कोर्सेज हैं उसके अलॉन्ग आप इसे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेट करने पर इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिजल्ट 1 आएगा, एंड दिस provides us the significance that the particle is certainly to be found somewhere in space, and उसके चांसेस क्या है, 100% चांसेस है कि वो मिलेगा स्पेस में कहीं ना कहीं। तो इस रिलेशन को भी हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन, एंड इस इक्वेशन को नॉर्मलाइजिंग कंडीशन बोलते हैं। या सो हाँ, तो हम कहाँ थे? ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपको बस ऐसे ही याद रखना है कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, तो उस पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी यूनिवर्स में 1 रहेगी, यानी 100% रहेगी। ना यहाँ पर साई के लिए भी कुछ सर्टन कंडीशंस होती हैं कि साई एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है, ये फाइनाइट वैल्यू के साथ आता है, इसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा जोर देकर याद रखना है। आफ्टर दैट स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन। अब डी ब्रॉगली का जो आइडिया हमने शुरू में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली कि मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ है वो भी h/p होनी चाहिए अगर फोटॉन्स की ऐसी है तो स्क्रॉडिंजर ने वहीं से दिमाग लड़ाया एंड पर उसके लिए एक अलग ही मैथमेटिक्स बना दी जिसको वेव मैकेनिक्स बोलते हैं, जहाँ पर उसने कुछ वेव इक्वेशंस डिराइव की विद द हेल्प ऑफ प्री डिराइव इक्वेशंस, जिनमें से हम 2 इक्वेशंस तो यहीं पढ़ेंगे, एक है स्क्रॉडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट, एक है स्क्रॉडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट वाली टाइम इंडिपेंडेंट से ही डिराइव होती है, लेकिन एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन आते हैं कि आपको वेव डिपेंडेंट एंड वेव इंडिपेंडेंट सेपरेटली डिफाइन करनी है, तो उस केस में आप इंडिपेंडेंट वाले को डायरेक्टली लिख के एग्जामिनेशन में डिपेंडेंट वाले को डिराइव कर सकते हैं। ओ, ये तो आपको वीडियो के लास्ट में बताना था, बट चलो एक स्पॉइलर ही सही। Of course, the very important topic of this video, Schrodinger time independent wave equation. So इसे डिराइव करने से पहले इसका जो पूरा लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, इससे पहले आपको इसे याद रखने के लिए कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है कि आपको यहाँ पर क्या क्या काम में आने वाला है इसे डिराइव करने के लिए। मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, इसे नोट डाउन कर लो। सो स्क्रॉडिंजर इक्वेशन जो टाइम इंडिपेंडेंट वाली इक्वेशन है उसे डिराइव करने के लिए आपको एक तो डी ब्रॉगली इक्वेशन की ज़रूरत है, देन वेव इक्वेशन इंस्टेंस की ज़रूरत है, स्ट्रिंग्स, ओके, वेक्टर्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और स्पीड्स के रिलेशन पता होना ज़रूरी है, एंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बेसिक फार्मूलाज या कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एटलीस्ट उसका। तो यहाँ पर 5 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी स्क्रॉडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। अब यहाँ पर सबसे पहली इक्वेशन जो है हमारी वेव इक्वेशन है स्ट्रिंग्स के अंदर। जब भी हमने स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ी हो, सॉरी स्ट्रिंग थ्योरी नहीं, जब भी हमने वेव्स के बारे में क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ा है तो स्ट्रिंग्स के बारे में हमने ज़रूर पढ़ा है।
तो एक स्ट्रिंग के लॉन्ग वेव का इक्वेशन ये रहता है d2y बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 डायमेंशनल वेव है एक्स वाई प्लेन के अलोंग। अब इसी के एनालॉजी से क्या कह सकते हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम जो हमारी मैटर वेव्स हैं उसके लिए भी एक वेव इक्वेशन लिखेंगे, जहाँ पर हम इसका वेव एम्पलीट्यूड साई से रिप्लेस करेंगे। साई इज इटसेल्फ एम्पलीट्यूड ऑफ अ मैटर वेव। एंड फर्दर ये d2y बाई डी टी स्क्वायर की जगह हमें मिलेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साई, या कह सकते हैं यहाँ पर डेवा, जो सिंबल को डेवा बोलते हैं, सो डेवा टू साई अपॉन डेवा टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर या वी स्क्वायर लिख दो। और ब्रैकेट में, क्योंकि अब हम एक मैटर वेव के लिए देख रहे हैं तो 3 डायमेंशनल वेव है, तो यहाँ पर अब एक ऑपरेटर का हम यूज करेंगे, इसे लैप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं। तो 3 डायमेंशनल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में था तो एम्पलीट्यूड को सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दिया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस एम्पलीट्यूड को एक्स वाई और जेड एक्सिस के नाम डिफरेंशिएट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये जो ऑपरेटर यूज किया गया यहाँ पर इसे लैप्लेशियन ऑपरेटर बोलते हैं, डेल टू ऐसे भी बोलते हैं इसे। तो फर्दर इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई होगी। आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से एग्जामिनेशन हॉल में। फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा सोल्यूशन कुछ इस तरीके से निकलता है। फाई ऑफ एक्स वाई जेड टी इक्वल्स टू साई नॉट ऑफ एक्स वाई जी ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा डी। यहाँ से आप देख पा रहे हैं टी इक्वल्स टू 0 पर ही शायद ये साई नॉट है। तो ये साइन नॉट रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको मैटर वेव का एम्पलीट्यूड। तो ये सोल्यूशन कहाँ से आया? ये सोल्यूशन इस डेरिवेटिव को सॉल्व करने के बाद आया। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ेंगे मैथमेटिक्स के अलावा, आपको इसे डिराइव करके इसका सोल्यूशन निकालने में बहुत आसानी होगी। अभी शायद आपको समझना है, इसलिए आप अभी के लिए याद कर सकते हैं, बट डिफरेंशियल इक्वेशंस की कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप समझेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आपको यही सोल्यूशन मिलेगा। इसे याद रख लो, साई इक्वल्स टू साई नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, सिंपल। एंड फर्दर यहाँ पर वेक्टर्स की नॉलेज अब मैंने जैसे बोला था आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक पोजीशन वेक्टर कंसीडर करेंगे आर, जो एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड जेड के कैप। अब इस फर्दर सॉल्यूशन को, इस वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर रीराइट करूँगा। The equation can be said as psi r t equals to psi naught r e to the power minus iota omega t। एंड फर्दर इस इक्वेशन को अगर हम ट्वाइस डिफरेंशिएट करते हैं, हमें ये एक फर्दर इक्वेशन नंबर 4 मिलता है, डेवा टू साई बाय डेवा टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साई। अभी के लिए याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बस ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि सबसे पहले क्या करना है, वेव इक्वेशन लिखना है, वेव इक्वेशन का सोल्यूशन लिखना है, फिर उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। पहले उससे पहले भी क्या वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, फिर 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एंड देन यहाँ पर पहली और जो 2 बार डिफरेंशिएट करने वाली इक्वेशन है उनको कंपेयर कर देना है। कंपेयर इसलिए कर देना क्योंकि दोनों में एक ही टर्म कॉमन है, वो है डेवा टू साई बाय डेवा टी स्क्वायर। तो जो कॉमन टर्म्स है उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे ताकि इक्वेशन सिंप्लीफाई हो। कोई भी डेरिवेशन में एलिमिनेशन करना ज़रूरी होता है ताकि इक्वेशन जितना सिंपल हो सके उतना किया जा सके, जितना सिंपल किया जा सके उतना उसे करें। एक सेकेंड, शायद थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा ही ब्राइट है क्या? अब सही। सो हाँ, इक्वेशन 1 और 4 को कंपेयर करने के बाद हमें फर्दर ये इक्वेशन मिल जाएगी। देखो यहाँ पर इक्विटी की इक्वेशन थी, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को पढ़े, फॉर एग्जाम्पल 1 and 4 वी गेट दिस सर्टेन इक्वेशन। यहाँ तो इक्विटी वाली इक्वेशन को देखिए, ये हमें एग्जैक्टली मिलने वाली। फर्दर इसको रीराइट करके RHS में या LHS में किसी भी साइड शिफ्ट करके हमें ये 5th इक्वेशन मिलेगा।
अब इस फिफ्थ इक्वेशन का हम फर्दर और इटरेशन करेंगे यानी इसे और सिंप्लीफाई करेंगे और ऐसी क्वांटिटीज की टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे जिन्हें हम मेजर कर सके। यहाँ तक जो है इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है, यही टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, लेकिन अभी ये ऐसी एंटिटीज की टर्म्स में नहीं है जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर करें। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखेंगे s2 पाई f, एंड जो पार्टिकल का वेलोसिटी उसे अगेन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म्स में लिख देंगे। तो फ्रीक्वेंसी वाली टर्म कॉमन है, एलिमिनेट हो गया, एंड फर्दर ये क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ मिल जाएगी। अब आपको इसे डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा। फर्दर अब यहाँ पर हम डी ब्रॉगली के वेवलेंथ को भी यूज करेंगे। तो मैंने इनिशियली आपको 5 चीज बताई थी, तो ऑलमोस्ट 4 चीजें उसमें से यहाँ पर यूज हो चुकी हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन, वेव इक्वेशन इन स्ट्रिंग्स, वेक्टर्स, ओमेगा एफ और स्पीड के बीच में रिलेशन। यहाँ पर फर्दर वेवलेंथ का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करने पर हमें इक्वेशन यहाँ पर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में मिल जाएगी। अब क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम मेजर कर सकते हैं, सॉरी कांस्टेंट हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम है। अब मोमेंटम को हम मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमारे पास डिवाइसेस हैं, या हम वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं एक्सेट्रा। और फर्दर इसको एनर्जी की टर्म में भी ला देते हैं ताकि हमारे लिए और आसान हो जाए, कि ताकि हमारे पास अगर ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्टली एनर्जी मेजर करता है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाए। हाँ ये क्या हो गया, ओके तो शायद थोड़ा फेस का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। या सो शायद अब थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छा हो गया। ओके तो यहाँ पर हमने फर्दर काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में इक्वेशन को रीराइट किया, एंड काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में इनफैक्ट किया रीराइट एज काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्दर यहाँ पर हम सॉरी जो टोटल एनर्जी है उसे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखा जा सकता है। यहाँ पर काइनेटिक को मोमेंटम की टर्म्स में हमने रीराइट किया, एंड फर्दर यहाँ पर मोमेंटम हमें टोटल एनर्जी, मास और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में हमें यहाँ पर मिल गया इक्वेशन नंबर 9 में। फर्दर मोमेंटम के स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 8 में सब्स्टिट्यूट करने पे इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस होता है। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज की टर्म है, मास की टर्म्स है, और अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के इवेल्युएट करना है तो मास की टर्म तो मैं मास की वैल्यू ऑलरेडी है, एनर्जीज की वैल्यू मैं उसके लिए इजीली ऑलरेडी प्रेजेंट डिवाइसेस से मेजर कर सकता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 9, 8 और 6 ये सारे ही स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, लेकिन 11th वाली ऐसी है कि हम इसमें जो एंटिटीज है उसे इजीली मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको रटना है रट लीजिए, समझना है समझ लीजिए। इसके बाद स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो जो हमें पहले वेव इक्वेशन का सोल्यूशन मिला था साई ऑफ आर कॉमा टी इक्वल्स टू साई नॉट आर ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। यहाँ पर आई जो है आयोटा है, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आई है, ये नॉर्मल आई नहीं है। अब बस उसी सॉल्यूशन को हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम डिफरेंशिएट कब कर रहे थे, जब हमने यहाँ पर हाँ नहीं सॉरी पहले भी सेम ही स्टेप पे डिफरेंशिएट कर रहे थे। हाँ इसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डायरेक्ट यूज़ किया था, यानी यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के बाद हम डायरेक्टली ही एंगुलर वेलोसिटी को एनर्जी की टर्म्स में लिख देंगे। पहले एंगुलर वेलोसिटी को प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में हम लिखने की कोशिश कर रहे थे एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी को। इसमें क्या है, डिफरेंशिएट करने के बाद ही आपको एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना, ना कि पहले डी ब्रॉगली पढ़ना, तब आपको टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन मिलेगा। इसके कुछ ये सर्टेन स्टेप्स हैं। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई ई बाई एच आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एच म्यू है, यहाँ से आप म्यू की वैल्यू को ई और एच की टर्म्स में वैल्यूएट कर सकते हैं। फर्दर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो रिलेशन निकल जाएगा इनके बीच का। फर्दर आप उस डबल डेरिवेटिव इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट करें
दोनों साइड आयोटा से मल्टीप्लाई करें और आपको ये सर्टेन इक्वेशन मिल जाएगी कंपेयर करने के बाद। इस इक्वेशन में आपको बस एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, -h² अपॉन 8π² है। उसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डिराइव करते करते इस सर्टेन पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। 8π² m/h² का फैक्टर इस ब्रैकेट वाली टर्म से मल्टीप्लाइड रहेगा, तो यहाँ पर आपको आयोटा h अपॉन 2π को अंदर रखना है ब्रैकेट के, एंड बाकी सारी टर्म्स को बाहर निकाल देना है, एंड उससे मल्टीप्लाई करके आपको फर्दर इसे इक्वेशन नंबर 8 तक रिड्यूस करना है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 8 में दो ऑपरेटर्स को डिफाइन किया गया है इस इक्वेशन की हेल्प से, एक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और एक आइगन्स ऑपरेटर, एज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी के रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आइगन्स ऑपरेटर के हेल्प से आप उसके पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स को समझ सकते हैं। ये क्वांटम स्टेट्स पोजीशन, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और उसकी स्पिन, इस सभी चीज़ों के रिलेवेंट में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये इन ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। तो आपको इनके डेरिवेशंस को याद ही रखना है। सिंपल वे में आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो, जब भी आपको टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन डिराइव करना, तो पहला स्टेप आपको वेव इक्वेशन पता होना चाहिए। स्ट्रिंग के केसेस में उसका सोल्यूशन पता होना चाहिए। सोल्यूशन तक दोनों में ही कॉमन है, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के डेरिवेशन में। उसके बाद आपको डबल डेरिवेटिव करना, डबल डेरिवेटिव तब भी कॉमन है। अब यहाँ पर गेम बदलता है। अगर आपको टाइम इंडिपेंडेंट में अपना फॉर्मूला निकालना है, आपको पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज करना है, एंड देन एंगुलर वेलोसिटीज को फ्रीक्वेंसी की टर्म में सब्स्टिट्यूट करना है, एंड वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी की टर्म में सब्स्टिट्यूट करना है। बट टाइम डिपेंडेंट निकालना है तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद ही आपको फ्रीक्वेंसी को एनर्जी और प्लैंक्स कांस्टेंट की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना है। एंड फर्दर आपको अपने रिजल्ट्स को थोड़ा उसके बाद थोड़ा याद रखना है, क्योंकि यहाँ तक तो आप एक ट्रिक से उसे याद रख सकते हैं। इसके बाद के स्टेप्स आपको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे कि आयोटा से मल्टीप्लिकेशन होगा, रीअरेंज होगी इक्वेशन, h² अपॉन 8π² m के फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। फिर दो ऑपरेटर्स आएंगे, उन ऑपरेटर्स का नाम भी एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है। इनको h और e से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h psi इक्वल्स टू e psi करके इक्वेशन नंबर 9 आपको लिख करके इसके डेरिवेशन को एंड करना है। इसके फर्दर एप्लीकेशंस क्या हैं स्क्रॉडिंजर्स वेव इक्वेशन के? 3 एप्लीकेशंस बताए हैं, पार्टिकल इन रिजिड बॉक्स, पार्टिकल इन नॉन रिजिड बॉक्स एंड टनलिंग। पार्टिकल इन रिजिड बॉक्स, पहले देखो रिजिड क्या है। रिजिड से क्वांटम मैकेनिक्स में सिग्निफिकेंस क्या है कि ऐसी दीवारें, सॉरी ऐसा बॉक्स जिसकी दीवारों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा कि उसके अंदर प्रेजेंट पार्टिकल उसके अंदर से चाह के भी एस्केप ना कर पाए। इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस इमेज में रीजन 1 और 3 के पोटेंशियल्स को इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड का रखा गया, एंड रीजन 2 के अंदर उसका पोटेंशियल 0 है, एंड x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू l करके उस रीजन के कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट्स। पार्टिकल इस रीजन से बाहर नहीं जा सकता, तो हम एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे जो इस बॉक्स के अंदर पार्टिकल के पोजीशन की प्रोबेबिलिटी हमें बताएगा। तो यहाँ पर हम टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का ही यूज करने वाले हैं। सिंस यहाँ पर मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है x में, तो यहाँ पर जो हमारा लैप्लेशियन ऑपरेटर है उसमें जो डेरिवेटिव वाली टर्म है वो डेवा 2 साई बाय डेवा x² की जगह d2 साई बाय dx² हो जाएगा। यहाँ पर आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। ये जो अगर डेरिवेटिव में d लिखा है तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, अगर डेवा लिखा है ऐसे साई मतलब ऐसे घुमा करके साइन बनाया है तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो। ये टर्म्स थोड़ी हैवी लग रही होंगी, लेकिन once if you go through the concepts of these things, derivative and integrals, तो ये चीज़ें बहुत आसान है आपके लिए याद करना। सो इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी फर्दर, ये वाली इक्वेशन, क्योंकि इस रीजन के अंदर पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ पर v0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस फॉर्म में रिड्यूस होगा। यहाँ से जो 8π² me/h² है, इसको एक फैक्टर k की टर्म्स में एज्यूम किया गया है, k² की टर्म्स में एज्यूम किया गया है।
जिससे फर्दर इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो इसके सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्मेट में निकले। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके इमेजिनरी रूट्स है, जिसका जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म में लिखा जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा। psi equals to a times of e to the power I k x plus b times of e to the power minus I k x, यहाँ पर I is iota। iota की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाई होगा। नाउ जब हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो बाउंड्री पे प्रोबेबिलिटी तो जीरो ही होगी पार्टिकल को फाइंड करनी की, क्योंकि वो बाउंड्री पे एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, वहां पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है, तो उससे बाहर तो नहीं होगा, उसके अंदर अंदर ही होगा। तो बाउंड्रीज पे भी हम ये अज्यूम करेंगे कि नहीं है, इनफैक्ट वो पार्टिकल उस बॉक्स के अंदर ही है, बट वॉल्स पे नहीं। सो साई ऑफ जीरो एंड साई ऑफ एल विल बी जीरो। तो बाउंड्री कंडीशन जब मैं यहाँ डालता हूँ तो आई विल गेट two equations as mentioned here, a plus b equals to 0 and a e to the power iota kl plus b e to the power minus iota kl equals to 0। फर्दर इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से यहाँ पर मैं एक जनरल सोल्यूशन निकालूंगा, दैट इज 2 iota a into e to the power iota kl minus e to the power minus iota kl divided by 2 iota equals to 0। नाउ अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी करते हैं तो आपको यूलर्स फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना सिखाया जाएगा। जब आप वहां पर इसे लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि e to the power iota kl can be written as cos of kl minus of iota sin kl, एंड इसी में अगर माइनस आयोटा kl है, इट कैन बी रिटन एज cos of iota kl प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आयोटा के एल। यहाँ पर कॉस वाली टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी, बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आयोटा साइन के एल, एंड डिनोमिनेटर में भी 2 आयोटा है। फर्दर इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्मेट में, एंड यहाँ पर k टाइम्स ऑफ l विल बी इक्वल्स टू n पाई। सो दिस इक्वेशन विल बी फर्दर रिड्यूस इन दिस फॉर्म। हाँ, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, k स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर। एंड फर्दर ये एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप इस एनर्जी लेवल्स को डिफाइन कर पाएंगे एंड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। दैट इज ई एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 ml स्क्वायर। अब मेरे एग्जाम्स में मुझे यहाँ पर यही भूल गया था कि डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर है कि एल है, तो आपको सिंपल याद रखना है कि यहाँ पर जितनी भी एंटिटीज है मास को छोड़ के सभी का स्क्वायर है, तो एन एच एल है और एम है, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर करके फॉर्मूला रहेगा। हाँ, के एल इक्वल्स टू एन पाई है, जहाँ पर एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन है, इंटीजर्स। इंटीजर्स नहीं, इसे हमें नेचुरल नंबर कहने से, तो नेचुरल नंबर्स होंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं होगी ना इनकी वैल्यू। हाँ, तो इसके सोल्यूशन से मिला ना ये के एल इक्वल्स टू एन पाई। तो अगर आपके मन में डाउट आए, मैंने ज़्यादा ऑब्वियस तरीके से नहीं बता दिया। सो क्या था कि अगर आपके मन में ये एक सेकेंड, हाँ, आपके मन में अगर ये डाउट आए कि ये के एल इक्वल्स टू एन पाई कैसे है, तो इस इक्वेशन 5 को देख लीजिए, इसका सोल्यूशन ही तो है। साइन की टर्म्स जीरो कब होती है? एन पाई पर, जब उसका एंगल एन पाई के बराबर है, जहाँ इनकी वैल्यू नेचुरल नंबर्स है। तो इस एनालॉजी से फॉर्मूला डिराइव हुआ है, इस फॉर्मूला को अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है कि इसमें स्क्वायर वाली टर्म्स हैं। यहाँ पर फर्दर इसके एनर्जी लेवल्स को डिफाइन किया गया। अब एनर्जी है तो वेव फंक्शंस भी आ जाने चाहिए। अब इसका ये जो वेव फंक्शन है ये 2 आयोटा ए साइन के एक्स है। आप डायरेक्टली से याद कर लीजिए, कैसे आया उस पर दिमाग मत लगाइए। हाँ, हाँ, तो डायरेक्टली याद ही कर लो।
अगर नहीं याद हो रहा है तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, जो जनरल सॉल्यूशन है ए ई टू द पावर आयोटा के एक्स बी ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, बाउंड्री कंडीशन लगाने पर b इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, यहाँ पर a की टर्म्स में क्वेश्चन को लिख दो। एंड यूलर्स फॉर्म का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि e की पावर आयोटा x को आप लिख सकते हैं cos ऑफ आयोटा x माइनस आयोटा साइन ऑफ आयोटा x। यहाँ के एक्स है तो थीटा एंगल में जो है, एंगल में के एक्स हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपकी निकल के आ जाएगी 2 आयोटा ए साइन के एक्स। एंड यहाँ पर k का वैल्यू क्या है, k स्क्वायर वॉज एज्यूम्ड एज 8 पाई स्क्वायर एम ई बाय एच स्क्वायर। So k can be written as under root of this value, which is equals to n pi l। तो यहाँ पर n pi by l की फॉर्म में इसे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इक्वेशन थर्ड विल बी अचीव्ड। तो ये जो इक्वेशन थर्ड है ये आइगन्स फंक्शन को दे रहा है। फर्दर ये जो एनर्जी है ये आइगन्स वैल्यू की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट ऑफ देयर इंटीग्रेशन विल बी नथिंग एक्सेप्ट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, जो इनिशियली इस वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन रेफर्स टू अ कंडीशन की स्पेस में कहीं ना कहीं पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो इस बॉक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं पार्टिकल प्रेजेंट है, इतना तो श्योर है। तो इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पर ये जो साई स्टार है इट्स नथिंग एक्सेप्ट इट्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में कुछ नहीं बस साइन अपोजिट कर दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया, इज यूज्ड एंड दिस रिजल्ट इज अचीव्ड, जिसको इंटीग्रेट करने पर आपको a इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2l मिल जाएगा। एंड फर्दर यहाँ पर क्योंकि a अब एक नॉन वैल्यूज की टर्म में है तो इक्वेशन 1 में मैं से सब्स्टिट्यूट करूंगा एंड फर्दर हमें इक्वेशन नंबर 5th मिल जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन नंबर 5th हमें ये ग्राफ्स मिल जाएंगे क्योंकि ये भी एक फंक्शन है साइनसोइडल ग्राफ्स। अगर आप इस पहले ग्राफ ए को देखते हैं तो यहाँ पर बाउंड्रीज पर ये ग्राफ x इक्वल्स टू 0 पर और x इक्वल्स टू l पर बाउंड्रीज पे ये तीनों ग्राफ साई 1 साई 2 साई 3, n1 क्या है ग्राउंड स्टेट, n2 क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही करते करते थर्ड एक्साइटेड स्टेट है n इक्वल्स टू 3 पर। तो वहाँ पर इनके साइनोसॉइडल कर्व कुछ इस तरीके से देंगे। आप n की वैल्यू 1 2 एंड 3 सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। अब इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या समझने में मिलता है कि फर्स्ट एनर्जी स्टेट पर इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, थ्रू मतलब प्रोलॉन्ग पॉजिटिव, यानी कि थ्रू आउट 0 से l पर ये प्रेजेंट है, मतलब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। साई 2 पर हम देख रहे हैं कि एक रीजन पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव है, यानी एक रीजन में है एक रीजन में नहीं है, ऐसा करके बताया है। साई 3 में हम देख रहे हैं ऐसे दो रीजन है, यहाँ पर पॉजिटिव एंड साई एंड एक रीजन नेगेटिव यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि साई जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो यहाँ एक कर्व नेगेटिव कैसे हो रहा है, नेगेटिव वैल्यूज कैसे शो कर रहा है। इसी के लिए ही हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इट इज़ स्क्वायर ऑफ साई तो इट विल नेवर एवर बी नेगेटिव। सो फर्दर ये साइनोसॉइडल कर्व कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ finding electron in that particular region. Then particle in non-rigid box is not a very convenient situation. बस आप ये समझ लीजिए कि इस बॉक्स के बाहर भी पार्टिकल होने की सम प्रोबेबिलिटी है। और पार्टिकल कहाँ ना होने की प्रोबेबिलिटी थी, बाउंड्री पर, तो बाउंड्री पे 0 है, इसलिए बाउंड्री पर आप देख पा रहे हैं इसका कोई एम्पलीट्यूड नहीं है वेव का, लेकिन उसके बाद हर जगह एम्पलीट्यूड है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं l/2 पर ये जो साई 2 है, यहाँ पर एक ग्राफ
ज़ीरो एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, यानी कि L/2 पर होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली यहाँ पर ये 3 पोर्शंस में डिवाइड हो गया, तो L/3 और 2L/3 पर ना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी और ऐड ऑन हो जाती है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पर। तो यही सिग्निफिकेंस इन ग्राफ का है। और नॉन रिजिड बॉक्स में क्या है कि दीवारों का पोटेंशियल एक लिमिटेड वैल्यू तक है, इनफाइनाइट नहीं है। तो यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो बॉक्स के बाहर भी रहे, इसलिए यहाँ पर कुछ एम्पलीट्यूड इस वेव का बॉक्स के बाहर भी शो किया गया। नाउ हियर इज सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। इसे आप याद रख लीजिए, मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बन के नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसके बाद टनलिंग इफेक्ट है एंड खत्म है चैप्टर। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। ये तो आपको 100% चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। एंड द सेकंड इज, हाँ, उनके डेरिवेशंस की। एंड द सेकंड इज कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर रिलेवेंट एंड पार्टिकल इन रिजिड बॉक्स का रेलिवेंट एनर्जी वाला जो फॉर्मूला था n²h²/8mL²। अभी मुझे m की जगह पाई का कंफ्यूजन होता है, तो आपको वो कंफ्यूजन नहीं रखना है। n²k²/8mL², ये फॉर्मूला याद रखना है। इसके ऊपर बेस भी न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो 4 पॉसिबल न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा आपको बस ये टनलिंग इफेक्ट क्या होता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। अभी ये समझा देता हूँ। इस टनलिंग इफेक्ट का जो ग्राफ है ये काफ़ी ज़रूरी है याद रखना, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। कौन से स्क्रॉडिंजर टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, 2 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद पार्टिकल इन रिजिड बॉक्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें उसका एनर्जी वाला फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल एंड शायद डेरिवेशंस भी, तो 2 क्वेश्चंस वो हो गए। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चंस, तो 5 क्वेश्चंस वहाँ से हो गए। उसके बाद एक टनलिंग इफेक्ट एक्सप्लेन करो, इसके ग्राफ को एक्सप्लेन करो या ग्राफ बनाओ, इसके ऊपर रिलेवेंट क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चंस आपको बता दी इंपॉर्टेंट, ये 100% आएंगे ही, इनमें से ही आएंगे, इसके बाहर से आई डोंट थिंक सो कि आने चाहिए। सो टनलिंग इफेक्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि पार्टिकल के पास कुछ चांसेस रहते हैं कि अगर वह एक पोटेंशियल बैरियर के थ्रू पास करना चाहता है, लेकिन इसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं कि वो पोटेंशियल बैरियर को पार कर सके, फिर भी उसके पास कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो उस एनर्जी बैरियर को पास कर जाए। जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है टनलिंग डायोड, स्कैनिंग टनलिंग, माइक्रोस्कोप, अल्फा पार्टिकल्स का डीके। यहाँ वो इंग्लिश में लिखा है स्टेटमेंट, इफ अ पार्टिकल इंसिडेंट ऑन अ पोटेंशियल बैरियर with energy less than the height of potential barrier, there is always some probability of transmission through the barrier। ये मतलब उतनी उसकी एनर्जी नहीं है कि वो बैरियर पास कर सके या दीवार तोड़ सके, बट फिर भी वो तोड़ लिया किसी तरीके से। अब इसे डिराइव करने के लिए यहाँ पर स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का यूज़ किया गया है। तो इक्वेशन नंबर 3 तक का एनालॉजी वो एनर्जी वाले इक्वेशन तक सही था, इनफैक्ट इक्वेशन 4 तक भी सही है। तो यहाँ पर रीजन 1 एंड रीजन 3 ये है क्या एक्चुअली में, रीजन 1 क्या है जहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट है, रीजन 2 क्या है पोटेंशियल बैरियर का रीजन, रीजन 3 है पोटेंशियल बैरियर के बाद का रीजन। तो पोटेंशियल बैरियर के बाद के रीजन में ये इक्वेशन रहेगी वेव की। यहाँ पर एक यहाँ पर फर्दर एक कंडीशन दिया गया है कि पार्टिकल रीजन 1 से 3 में फर्स्ट टाइम ट्रैवल करता है एंड फर्दर यहाँ पर डी समहाउ 0 हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दिया गया, रेलेवेंटली आपको इसे याद रखने की ज़रूरत भी नहीं, बस इतना समझ लेना टनलिंग इफेक्ट है क्या एंड उसके रिलेवेंट में ये इक्वेशंस क्या है। आई गेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसे पढ़ के जाइए, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि जिस चीज़ को हम छोड़ते हैं वही एग्जामिनेशन में आ जाती है। अब ये चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आती क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख रखी हैं एंड उसका सिग्निफिकेंस क्या है
वो भी नहीं बताया अच्छे से कि ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डिटरमाइन कैसे की गई, तो ये काफ़ी डाउटफुल रहता है। अभी के वीडियो लंबी ना करूं, मैं कोशिश यही कर रहा हूं। ऑलरेडी 1 घंटे के ऊपर की वीडियो हो चुकी है, तो मेरी यही कोशिश है कि मैं इसे ख़त्म करूं जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों को भी बहुत लंबा वीडियो ना देखना पड़े। द थिंग इज कि अगर आपको ये ये पर्टिकुलर डेफिनेशन इंटरनेट से सर्च करने के बाद भी समझ नहीं आ रही है, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज इन द कमेंट बॉक्सेस, एंड वहाँ पर आपके मैसेजेस की फ्रीक्वेंसी, या सॉरी फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, मैसेजेस की क्वांटिटी देखकर ही मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इस पर इसको अच्छे से समझा दूंगा। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस टनलिंग इफेक्ट क्या है ये समझ लो एंड उसके एप्लीकेशंस देख लो। नाउ टनलिंग डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो टनलिंग फिनोमेना को यूज़ करता है। अब सेमीकंडक्टर्स यूनिट अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर सर्टन चार्ज कैरियर्स होते हैं एंड सर्टन चार्ज रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो चार्जेस और जो चार्ज रिसेप्टर्स उन्हें होल्स बोलते हैं, वो एक सर्टन डिप्लीशन रीजन्स के थ्रू पास करके आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब टनलिंग डायोड में यही डिप्लीशन रीजन बहुत हाईली डोप्ड होता है एंड बहुत ज़्यादा थिन होता है। इसी के करके इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हो जाते हैं, इवन दो उनके पास आ, उसे पार करने इतना एनर्जी नहीं होता है, कह सकते हैं पोटेंशियल नहीं होता, या जो भी हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर हाँ, इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स में यूज़ होता है। फर्दर ये इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है। यहाँ पर ऑर्डिनरी डायोड और टनलिंग डायोड के ग्राफ्स को प्लॉट किया गया है। ऑर्डिनरी डायोड का ग्राफ ये डॉटेड पाथ फॉलो कर रहा है एंड सॉलिड पाथ टनल डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है कि जो ये एक सर्टन पोटेंशियल वीपी पर जो करंट है टनल डायोड्स के थ्रू मैक्सिमम पास हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास हो जा रहे हैं, यानी कि एक सर्टन पोटेंशियल वीपी पर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जा रहे हैं। रीज़न बीइंग कि उस सर्टन लो वोल्टेज पर जो एनर्जी लेवल्स हैं टनल के और इलेक्ट्रॉन के वापस में अलाइन कर पा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बैरियर को पास कर पा रहे हैं। लेकिन जब यहीं पर हायर पोटेंशियल होता है तब ये उस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पा रहे हैं, दस एक ऑर्डिनरी डायोड की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एकदम से इसके क्रेस्ट में एकदम से जो इंक्रीज आया इस कर्व के, वो इसलिए आया क्योंकि इस वीपी पोटेंशियल पर एनर्जीज उन सर्टन पार्टिकल्स या सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की अलाइन हो जा रही हैं पोटेंशियल बैरियर्स के पार्टिकल्स के साथ, इसलिए वो उसे क्रॉस कर पा रहे हैं, टनल कर पा रहे हैं। देन इज योर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जहाँ पर ये पूरा इसका सेटअप है, जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस आपको इसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि आप इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करें। अभी के लिए नहीं आएगा, शायद आपके एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में आ जाए, तो तब तक के लिए इसे रेडी कर लीजिएगा, या फिर शायद मैं ही इस पर वीडियो डाल दूंगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो जो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, उन्हीं में से आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने वाला है इस यूनिट के अंदर से। डेफिनेटली मैं एक से सेपरेट वीडियो कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा विद आंसर्स, आप उसके थ्रू भी उसे भी आप रीड कर लीजिएगा। यू विल बी गेटिंग मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम दोज क्वेश्चंस। हाँ, इसके बाद जो भी फॉर्मूलाज हमने यहाँ डिराइव किया उनकी हेल्प से हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं न्यूमेरिकल्स। अगर यहाँ पर 2-3 ही फॉर्मूलाज हैं। एक एनर्जी वाला फॉर्मूला है, एन स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर करके फॉर्मूला है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है, और बस इन्हीं 2 के ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे एंड आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर शायद अगर आपके पास ऑलरेडी हो तो आप कीजिए,
इफ़ यू वांट मैं आपको सॉल्व कराऊँ तो डेफिनेटली मैं आपको सॉल्व कराऊंगा. दैट्स ऑल. बाय बाय. दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड दिस इज टीम इंसेप्टर रेसिंग.